Hello, students. This is the part 3 of Unit 2 Man's Relationship with Animals of Standard 8. In this video, we will discuss Activity 7, Activity 6, Activity 8, Activity 9, and Activity 10. Okay? The first one is Activity 6. Fill in the blanks with the appropriate verb. Students, this activity is given on the basis of activity 5. If you don't see the video of activity 5, first you go and see the activity 5 video and then come to activity 6 so that you easily understand activity 6. Okay? And if you see the video of activity 5, then we continue. Okay? Fill in the blanks with the appropriate verb. Students, some verbs are given in bracket and you have to change this word into verb by adding suffix. Okay? The first one is the streets of the city are being dashed. The word given in bracket is white. Okay? So if we add suffix n, then it change into verb and the word being called as widen. Okay? So in these blanks, widen will come. The streets of the city are being widened. यानी कि बच्चों जो सिटी की जो स्ट्रीट्स थी, जो रोड थी, जो सड़कें थी, वो क्या थी? बहुत ही चौड़ी थी. ठीक है? Come to the next. Do not speak so loudly. Dash your tone. In this sentence, soft word is given in the bracket and you have to change this word into verb by adding en. Okay? Soften. Do not speak so loudly. Soften your tone. यानी कि इतना ज़ोर से मत बोलो, अपनी जो आवाज़ है उसको थोड़ी सी क्या करो? धीमी करो. Come to the third. They could not dash. He was blind for years. The word given is believe and this word will change into believe. So what will be the spelling of believe? Believe. We have just simply remove the letter F and add ve. Okay? So it becomes believe. They could not believe he was blind for years. वो लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो बहुत सालों से क्या था? ब्लाइंड यानी कि अंधा था. कम टू द फोर्थ. Nobody dashed Joseph death as much as pray. The word given is grief. Grief will change into grief. The spelling of grief is Grieve. Grief. Okay? So nobody grieves Joseph death as much as pray. जो जोसेफ की डेथ से सबसे ज़्यादा जिसको सदमा लगा था वो था प्रे. फिफ्थ वन इज जोसेफ डेथ डैश प्रेस लाइफ फॉर एवर. डार्क विल बिकम डार्कन. वी विल ऐड en एंड इट्स बिकम डार्कन. जो जोसेफ की जो डेथ से जो प्रे की लाइफ वो एकदम अंधेरे में चली गई थी. कम टू द सिक्स्थ. जैकस डैश पिरे टू टेक अ डे ऑफ. जैकस ने पिरे को एडवाइस दी. एडवाइस का हम क्या चेंज कर देंगे? एडवाइस्ड. डी लगा देंगे. SED. ओके? सो जैकस एडवाइस पिरे. जैकस ने पिरे को एडवाइस दी थी कि वो अब छुट्टी ले ले, ऑफ ले ले. ओके? कम टू द सेवेंथ. Everyone dash the old man's death. Okay, in this the sympathy is given in the bracket and it will change into sympathize. Okay, so everyone sympathize the old man death. हर कोई अपनी सहानुभूति दे रहा था. ओके, ओल्ड मैन की डेथ पर. द नेक्स्ट वन इज दिस स्टोरी डैश लव बिटवीन एनिमल्स एंड मैन. स्टूडेंट्स,
the story we will learn in part 1. What that story tells us? That story symbolizes the love between animal and man. In the word symbol will change into symbolize. Okay. 9th one is Joseph death dash Perry. In this horrible is given. So horrible, if we add suffix fy, it will change into horrify. Okay. So in this blank horrify will come. Joseph death horrify Perry. The 10th one is the warning yell of the truck dash the old man. In this the bracket terrible is given. Terrible, in terrible we will add fy and it will change into terrify. The warning yell of the truck terrify the old man. Understood? So now let us discuss activity 7. Pick out the appropriate expression for the underlined words और phrases in the following statement. Students, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन दिया गया जो वर्ड है उसका जो सेम मीनिंग निकलता है, ओके, उसका जो सेम मीनिंग है उसको आपको क्या करना है, चूज़ करना है. ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो अंडरलाइन का जो सेम मीनिंग बनता है उसको आपको क्या कर लेना है, टिक मार्क कर देना है, वो सही है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द हॉर्समैन वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक. द ट्रक ड्राइवर सेड आई कुड नॉट हेल्प. मीन्स स्टूडेंट, आई कुड नॉट हेल्प मीन्स आई वॉज अनेबल टू सेव हिम. सो this question answer is the first one, I was unable to save him. Okay, come to the next. Pere used to say that he did not need Rians. Rians means Rians बच्चों वो एक बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनको हम चलाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बुल्लक कार्ड में जो बुल्लक होती है, ठीक है, हॉर्स में जो हॉर्स होता है, तो उनके जो मुंह पे जब हम कुछ रस्सी से बांध देते हैं, जो डोर होती है जो हम हाथों में पकड़ते हैं, जिनके ज़रिए हम अपना जो कमांड है वो एनिमल्स को देते हैं कि उनको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, ठीक है, तो वो जो रस्सी होती है उसे हम कहते हैं रियांस. सो इन दिस स्टेटमेंट पीरे से डैड ही डिड नॉट नीड रियांस. सो व्हाट दिस मीन्स, did not need Rians means the horse could do without Rians. Actually, the horse in which the Pire will ride, that horse will stop by its own. He knew everyone that where he have to stop and where he have to start riding again. Okay, so therefore Pire said that he never used Rians to stop his horse. Okay, so come to the next one. The third one is maybe you have got the gout. Gout means disease. Okay, gout means क्या होता है, disease. तो इसमें क्या होता है, maybe you have got the gout. हमें लगता है आपको बीमारी है. तो but actually the meaning of this underlined word is the second one. He thought Pire suffered from gout. Okay, gout means actually the Pire was suffering from the disease named cataract. Okay, to come to the fourth, his salary will go on just the same. हिज सैलरी विल, आपने ये चैप्टर बच्चों पढ़ा है, उसमें जो जैकस होता है वो जो पेरे के काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें अब मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए, तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हारी जो सैलरी है जो तुम्हें जैसे अभी मिलती आ रही थी वैसे ही तुम्हें जब तुम रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी तुम्हें वैसे ही मिलती रहेगी. तो इसमें हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, हिज सैलरी विल कंटिन्यू एज यूजुअल, उसकी तो सैलरी थी वो ऐसे ही रहेगी जैसे कि पहले थी. कम टू द फिफ्थ, ही सॉ समथिंग विच स्टार्टलेट हिम. उसने कुछ ऐसा देखा
जिससे कि वो मतलब चकित हो गया, चकित इन दिस स्टार्टलेट मीन्स surprised. Okay, the meaning of surprise is actually the same as startlet. Okay, so the question fifth answer is surprised. Now come to activity 8. Write underlined sentences from the passage in a different way as suggested below. आपको बच्चों क्या करना है, सेंटेंसेस को अगर आपको बोला जाए कि उनको दोबारा लिखिए तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, लिखने के, तो वो हम पढ़ेंगे. देखिए, व्हेन वन थिंग पर्सन इज कंपेयर्ड विद अनदर थिंग और पर्सन, जब हम किसी एक पर्सन को या फिर किसी एक चीज़ को किसी और चीज़ के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, उस समय जब हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, उस समय जब हमें सेंटेंस बनाना होता है, तो उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन फॉर्मूले, किन रूल्स का ख्याल रखना चाहिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे. चलो, रूल नंबर 1 देखिए. इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स कंपेयर. सबसे पहले जो हमारे माइंड में सेंटेंस को बनाते वक्त जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें जो पर्सन्स की जो जगह है उसको चेंज करना है. समझ में आ गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में लिखा है दैट पायल इज टॉलर देन प्रिया. सो इन दिस स्टेटमेंट, while changing this statement, we will change the places of Payal and Priya. Okay, समझ में आ गया. In the place of Payal, Priya will come, and in the place of Priya, Payal will come. Come to the second one. Change the affirmative verb to negative and negative verb to affirmative. अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम एफर्मेटिव क्या होता है, हमने तो नहीं पता. तो बच्चों, एफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, जब हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक किसी सेंटेंस की बात करते हैं उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव. और नेगेटिव तो आपको पता ही है, जब हम किसी नकारात्मक या फिर किसी रॉन्ग सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव. अंडरस्टैंड. कम टू द थर्ड. चेंज फ्रॉम एज डैश एज शो डैश एज ब्रैकेट पॉजिटिव डिग्री टू ER देन कंपैरेटिव डिग्री. ओके बच्चों, देखिए, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें जैसे एडजेक्टिव दिए जाते हैं, जैसे कि टॉल, ठीक है, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, है ना. शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टर. तो लास्ट में हमें क्या लगा देना है, ER. अगर आप लास्ट में उसे ER लगा देते हो तो आपका जो सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, वो कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है. ओके, नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस मेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और चेंजेस को अच्छे से पढ़ना है कि कैसे उन्होंने चेंज किया है while making the sentence. Okay, the first one is रमेश इज एज टॉल एज राधा. जो रमेश है वो टॉल है राधा से. तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें इसको नेगेटिव में करना है. तो ये क्या हो जाएगा, राधा इज नॉट. नॉट लग जाएगा नेगेटिव के बाद. ओके, अब हमें सेकंड चीज़ क्या है, प्लेसेस चेंज करने हैं. रमेश की जगह आ जाएगी राधा और राधा की जगह आ जाएगा रमेश. और जो थर्ड चीज़ जो हमारे फार्मूले की है वो है टॉल, यानी कि जो हमारा जो एडजेक्टिव है वो किस में हो जाएगा, कंपैरेटिव में करने के लिए हम क्या लगा देंगे, ER. इसलिए टॉल का हो जाएगा टॉलर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया है. हितेश वाज एज स्ट्रॉन्ग एज हिरेन. जो हितेश है वो स्ट्रॉन्ग है हिरेन से. तो सबसे पहले नेगेटिव में करेंगे तो नॉट लगाएंगे. सेकंड चीज़ क्या बात याद रखनी है, प्लेसेस चेंज करनी है. ओके, तो हितेश की जगह आ जाएगा हिरेन और हिरेन की जगह आ जाएगा हितेश. एंड द थर्ड चीज़ क्या याद रखनी है, जो एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है उसमें हम क्या लगा देंगे, ER, ताकि वो किस में चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव में. क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, हितेश और हिरेन के बीच में, इसलिए स्ट्रॉन्ग में लग जाएगा ER और बन जाएगा स्ट्रॉन्गर. सो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, हिरेन वॉज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हितेश. अंडरस्टूड. कम टू द थर्ड.
यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, तुम इंटेलिजेंट हो अपने भाई की तरह। तो अब यहाँ पे नेगेटिव में करने के लिए नॉट आएगा। ओके, प्लेसेस चेंज करनी है, यू की जगह आएगा योर ब्रदर और योर ब्रदर की जगह आएगा यू। बट हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें जो इंटेलिजेंट है, जो बड़े बड़े जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, उसमें हम लगाते हैं मोर। ओके, वाइल मेकिंग इट इनटू कंपैरेटिव। ओके, जब भी हमें कंपैरेटिव में बनाना होगा तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मोर। ओके, so what will be the sentence? Your brother is not more intelligent than you. Come to the fourth. A donkey is not so clever as a horse. जो डोंकी है वो इतना क्लेवर नहीं है जितना कि हॉर्स है। तो अभी ये हमें इसको बनाना है। तो अभी डोंकी की जगह हॉर्स और हॉर्स की जगह डोंकी, प्लेस चेंज हो गई। क्लेवर का बन गया क्लेवरर। ओके, तो हमारा नेगेटिव में था अ डंकी इज नॉट, तो अब हमें इसको पॉजिटिव में लिखना है, अ हॉर्स इज क्लेवरर देन अ डंकी। समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स रीड एक्टिविटी 9। Rewrite the following sentences as directed. Now student, in this activity 9 you have to rewrite the sentences as we done in activity 8. ओके, एक्टिविटी 8 में जैसे हमने अभी पढ़ा वैसे ही आपको एक्टिविटी 9 में जो सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करना है। सो फर्स्ट वन इज एनर्जी पुट इनटू रिक्लेमेशन इज ऑफन हायर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोडक्ट। देखिए, इसमें आपको पहले ही बोल दिया गया है जो एडजेक्टिव हायर है उसको आपको हाई में चेंज करना है। समझ में आ गया? अब जो लास्ट वर्ड है एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट वो आ जाएगा फर्स्ट में, और जो एनर्जी पुट इनटू रिक्लेमेशन है वो आ जाएगा लास्ट में। समझ में आ गया? और ये जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। और लेट मी रीड इट, एनर्जी रिलीज्ड in the product is often not so high as energy put into reclamation. Understood? तो ये इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। कम टू द सेकेंड, she looked as new as a peeled egg. ओके, आपको इसमें रिराइट करना है न्यूअर, न्यू की जगह क्या लगाना है, न्यूअर, ये आपको बोला गया है। अब अ पिल्ड एग जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, अ पिल्ड एग। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव में है तो इसको हम किस में कर देंगे, नेगेटिव में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ पिल्ड एग डिड नॉट लुक न्यूअर देन शी। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द थर्ड वन, इट इज अ टास्क एज डिफिकल्ट एज वॉकिंग ऑन अ रेजर एज। रीराइट यूजिंग मोर डिफिकल्ट। आपको डिफिकल्ट की जगह क्या यूज करना है, मोर डिफिकल्ट। पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव में करना है। और थर्ड चीज़ है प्लेसेस चेंज करनी है, तो क्या बन जाएगा, वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन द टास्क। अंडरस्टूड? कम टू द फोर्थ, द शेम लाइज नॉट सो मच इन गोइंग टू जेल एज इन कमिटिंग द ऑफेंस। चेंज करना है आपको डिग्री, डिग्री में आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगा, द सेम लाइज more in committing the offense than in going to jail। मच का क्या हो जाएगा, more। अंडरस्टूड? डिग्री में चेंज करना है तो मच का क्या हो जाएगा, more। कम टू द फिफ्थ, the human animals had more intelligence and better weapons than his cousins। तो ये तो बच्चों आपको पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव में चेंज करना है। सेकंड चीज़, यूज इंटेलिजेंस एंड गुड एंड रीडर। अब आपको क्या यूज़ करना है, इंटेलिजेंस और गुड। बेटर की जगह क्या यूज़ करना है, गुड। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, द कजन्स ऑफ ह्यूमन हैड नॉट as much intelligent and as good weapons as the human animals had। Now come to the sixth, this is a much surer method than using saliva। Change the degree। आपको इसमें क्या करना है, चेंज करनी है डिग्री। तो कैसे करोगे, यूजिंग सलाइवा इज नॉट सो श्योर मेथड एज दिस। आपको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। अंडरस्टूड? और जो यूजिंग सलाइवा है वो पहले आ जाएगा,
शो यूजिंग सलाइवा इज नॉट शो श्योर। अब डिग्री में करना है तो श्योरर का क्या हो जाएगा, श्योर। अंडरस्टूड? ओके, कम टू द सेवेंथ। वी न्यू अ बिट मोर देन द लेडीज डू। चेंज द डिग्री। अगेन डिग्री चेंज करना है। मोर दिया है बच्चों तो मोर का हो जाता है मच। क्या हो जाएगा, मच। अंडरस्टूड? So the sentence will change like this. The ladies do not know as much as we do. लेडीज को उतना पता नहीं है जितना हमें ये पता है, क्योंकि ये पॉजिटिव में था इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में। ओके, कम टू द एक्टिविटी 10. In activity 10, write a paragraph on the following in about 150 words. You have to write a paragraph of which contain at least 150 words. Okay? How should animals be treated? हमें इस पैराग्राफ में लिखना है कि हमें जो एनिमल्स हैं उनकी कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। ये आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट को आपको यूज करना है और आपको अपना पैराग्राफ 150 वर्ड्स में लिखना है। And if you found any difficulty while writing the paragraph, then I'll send activity 10 in your worksheet. Okay? And if you find difficulty in any activity, then you can easily refer the worksheet, as I already sent all the activities in the worksheet. ओके तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा यूनिट 2 है, मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल्स, वो ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।